Section name. Or ज़ीरो U2। इसके ऊपर है ग्रास फील्ड, रॉकी डेजर्ट, नॉर्दर्न फॉरेस्ट और ड्यून डेजर्ट। सो ये बेसिकली डिफ़िकल्टी लेवल है। ये लीस्ट डिफ़िकल्ट होएगा, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट होगा और बीच में मीडियम। तो इस वीडियो के पर्पस के लिए हम लीस्ट डिफ़िकल्ट रहेंगे। और स्किप इंट्रो नहीं, स्टार्ट गेम, स्टार्टिंग ग्रास फील्ड। ओके, कंफर्म। HUD-OS, fix it. Separation from main transport complete. Group A delivered to Calistian region. All pioneers functional, initiating dispersion. अभी इनको बोल लेने देते हैं, फिर हम लोग बात Attention करेंगे। pioneer, I am Ada, your personal instance of the artificial directory and assistant. Welcome to the Fixit Incorporated Save the Day program. A Fixit pioneer has 3 core assignments. Construct. All pioneers must follow Fixit guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fixit selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designated. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fixit. Short-term solutions to long-term problems. Initiating planetfall. Atmospheric entry in 3, 2, 1. Beginning aero assist. Drag within acceptable parameters. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. Touchdown. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer. Acceptable. Congratulations, you are the third in your region to survive planetfall. Welcome to Massage 2, AB-B, in the binary system of Akicha. Loading objective-based introduction. Begin onboarding. First contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere to Fixit procedure and equip the Fixit Inc. Xeno Zapper before leaving the drop zone. Okay, press tab to open inventory, drag and drop equipment to a hand slot to equip it. Next objective, dismantle the drop pod. Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often referred to as the hub. Okay, press F to enter dismantle mode. While in dismantle mode, hold LMB left mouse button to dismantle. F and dismantle.
Next objective. Use the resource scanner to find and collect additional iron to be able to build the hub. If you cannot find iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron sources. Okay. Onboarding objective 3. Gather iron ore. Hold V to bring up the resource scanner. Select iron and release V to scan for iron node. Okay, V releasing. ये इस तरफ होगा. यहाँ भी है, यहाँ भी है, और हम लोग इधर चलेंगे. ये पंछी है इस प्लैनेट का. Okay, this is the valley. ओके सो मैंने ये गेम पहले भी खेला हुआ जब ये अर्ली एक्सेस में था. इस गेम ने करीब आई थिंक 4 या 5 साल अर्ली एक्सेस में निकाला है, 2019 से लेकर के 2024 तक. 2024 में ये फाइनली रिलीज़ हुआ, लेकिन 2019 से 2024 तक ये अर्ली एक्सेस में था. मैंने अर्ली एक्सेस में इसको खेला था, तो मुझे इसका कुछ नहीं, बहुत कुछ मालूम है. मैंने खेला था इसको आई थिंक टियर 4 तक खेला था, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया कि जब फाइनल रिलीज़ होगा तो खेलेंगे. तो अभी शायद इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, या अभी में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, पता नहीं है, लेकिन इन्होंने चेंज किया है. पहले स्टोरी नहीं था, अभी कुछ स्टोरी है, लेकिन स्टोरी इसमें वैसे भी नहीं है. ये क्या करते हैं कि पैसिव स्टोरी टेलिंग करते हैं, एक्टिव स्टोरी टेलिंग नहीं है. एक सेटअप है वर्ल्ड का, जैसे कि हमने जो आवाज़ सुना, जो हमारे को पहले इंट्रोडक्शन में आया था, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, या फिर AGI बोलेंगे. थोड़ा सा चैट GTP से ज़्यादा एडवांस है. और जो हमारा जो करंट टाइम में है, वो हम लोग फ्यूचर में है. फ्यूचर में काफ़ी आएगी फ्यूचर में, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन एक आई थिंक इंटरस्टेलर है. इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन है, वो तारों के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं. अब इंटरगैलेक्टिक है या क्या है पता नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता कि हाँ ये किसी और गैलेक्सी का प्लैनेट है या फिर हमारी गैलेक्सी में है, लेकिन ये हमारा प्लैनेट नहीं है. तो हम लोग करते हैं एक फिक्सिट इंडस्ट्री, उसके लिए काम करते हैं. इनका बस एक ही मकसद है उस कंपनी का कि किसी प्लैनेट पर जाओ और रिसोर्स इकट्ठा करो, और वहाँ पे इंडस्ट्री बनाओ, चीज़ें कंस्ट्रक्ट करो, और उसको स्पेस एलिवेटर से उसको आप भेजो ऊपर. कहाँ जाता है वो भी हमें नहीं पता, हमें बस ये टास्क रहता है और हमें ये करना रहता है. और ये एक डिस्टोपियन सोसाइटी है. ये जो कंपनी है उसको ह्यूमन का कुछ परवाह नहीं है, उनको भी प्रोडक्ट चाहिए. जैसे कि अगर आप अभी हैं, अगर हम यहाँ से जंप करेंगे तो अगर हमको डैमेज आएगा, तो वो जो कंप्यूटर है वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ आपको डैमेज मिला. वो कहेगा कि आप जो प्रॉपर्टी है, जो आपने कपड़े पहने हैं या फिर जो हाथ में लिया है, इसको डैमेज मत करो. इतना डिस्टोपियन नहीं है केस हो यहाँ पे. और यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड में एनिमल भी है. इतना बड़ा है, लेकिन ये कुछ डैमेज नहीं करता. जितने छोटे हैं जानवर, वही लोग ज़्यादा डैमेज करते हैं. वैसे आप इसके पीठ पे जंप भी कर सकते हैं. अगर ऊपर आप पहुँचो, किसी हाई जगह पहुँचो और वहाँ से इसके पीठ पे कूदो, तो ये एनिमल कुछ नहीं करता. वैसे चलते हैं अपने लोकेशन के पास में. वैसे फर्स्ट टास्क ये है कि आपको आयरन नोड आपको पता लगाना है. वहाँ पे आयरन नोड, और ये एक छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा ही है ये एनिमल है. वहाँ पे इकट्ठा करने से पहले इसको लड़ाई करना होगा. यहाँ पे है लाइमस्टोन नोड, और यहाँ पे है तो पत्ती इकट्ठा करते हैं. इसका काम आएगा, अभी तो नहीं, लेकिन बाद में. तो जो भी मिले उसको इकट्ठा करते चलते, क्योंकि बाद में फिर बाकी आना ही है. जब
आ जाओ। मर गया। ओके, हॉग रिमेन्स इस गेम में। Samples of new alien species acquired. Notable features are blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. तो जो एनिमल जो भी ड्रॉप करे उसको आप इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका इसमें हर चीज़ का यूज़ है। जो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं हर चीज़ का यूज़ है। अभी फ़िलहाल इसको माइन करेंगे। Next objective. Use the build gun to construct the hub. Iron is a base component necessary for all near future progress, so ensure you build the hub close to iron sources. Fix it does not pay by the kilometer. Okay, Q to open the build menu. Okay, ये हब है। इसको यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे बिल्ड करेंगे, यहाँ पे। क्योंकि अभी तो ये बता नहीं रहे, लेकिन फिर अभी तो ये आयरन का हमें यूज़ आएगा, और साथ साथ हमें लाइमस्टोन, जो कि वहाँ भी लाइमस्टोन का नोड है, और एक यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, लेकिन वहाँ पे ये जगह पर एक कॉपर नोड है। अभी तो ये सिर्फ कह रहा है कि आयरन चाहिए, लेकिन थोड़ी बाद में आपको कॉपर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे बिल्ड करने से अच्छा है कि यहाँ पे बिल्ड करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से क्योंकि हब से आगे पीछे बहुत जाना पड़ता है। अभी वैसे अभी ये जो पूरा पीरियड है, मतलब ये पूरा टाइम है, ये है ट्यूटोरियल टाइम, ये मेन गेम प्ले नहीं है। आपको हब अपग्रेड करना पड़ेगा 1 से 6 तक। 6 के बाद जो मेन गेम है वो 6 के बाद ही शुरू होता है। अभी तक मैंने जितना गेम खेला है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का स्लो ट्यूटोरियल होएगा तो इसी का है, लेकिन इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है। इसको स्किप किया तो बेसिक्स आपको समझ नहीं आएगा। सो क्या करते हैं, अभी हब बनाते हैं पहले। Hub foundation built. The hub terminal and crafting bench are only the humble beginnings of a successful Fixit pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Once finished, the hub will function as your base of operations. Next objective, complete hub upgrade 1. Hub upgrade 1. Okay, tier 0 upgrade 1. Upgrade 1 के लिए चाहिए हमें 10 आयरन रॉड्स। सेलेक्ट माइलस्टोन। इसमें अनलॉक होगा वर्कशॉप, पोर्टेबल माइनर और 1 हैंड इक्विपमेंट स्लॉट। तो ये इजी है। अभी जो हमने वहाँ से आयरन इकट्ठा किया वहाँ यहाँ पे क्राफ्टिंग बेंच पे लेके आएंगे। आयरन ओर्स के आयरन इंगट्स, और इंगट से बनेगा आयरन रॉड 9 10। ओके, 10 बनाते हैं रॉड। 10 11 बन गया, यहाँ पे डालेंगे। ओके, अपग्रेड 1। ये अपग्रेड Hub upgrade 1, storage and frame, completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Fixit mission. Next objective, complete Hub upgrade 2. हब अपग्रेड 2। ओके, अपग्रेड 2 कंप्लीट करने पे स्मेल्टर, पावर लाइन, कॉपर इंगट, वायर, केबल और कॉपर स्कैनेबल रिसोर्स है। वहाँ ये यहाँ पे एक मुझे पता है क्योंकि मैंने ये गेम खेला है, इसीलिए वहाँ पे होना चाहिए। अब दिख तो रहा है कि क्या करें अभी। अपग्रेड 2, सेलेक्ट माइलस्टोन, 20 रॉड और 10 आयरन प्लेट्स। आयरन प्लेट्स बहुत टाइम लगाते हैं बनाने में। इसके लिए क्या करें, पहले हम लोग क्या करें, वर्कशॉप के लिए चाहिए। पहले वर्कशॉप बनाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, क्योंकि वर्कशॉप से पोर्टेबल माइनर वॉल लॉक होएगा और वो यूज़फुल है, अर्ली गेम के लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसके लिए चाहिए 10 रॉड और 6 आयरन प्लेट्स। चलो माइनिंग करते हैं। हाँ, पोर्टेबल माइनर अभी क्यों यूज़फुल है, वो आ जाने से आपको हाथ से नहीं करना होगा। ये जो हाथ से कर रहे हैं आप,
और पोर्टेबल माइनर आने से क्या होगा कि आप उसको इसके ऊपर रख दो और वो ऑटोमेटिकली माइन करेगा और आप उसको बाद में आके उसने जितना भी माइन किया हो। लेकिन उसका एक ही लिमिटेशन है कि उसका जो पॉकेट साइज़ है वो 100 होता है, 100 या 200 डिपेंडिंग ऑन क्या आप माइन कर रहे हैं। स्क्रीन के बीच में आप देख रहे हैं ना कि प्रेस टू स्टार्ट माइनिंग आयरन ओर, उसके बाद ब्रैकेट में नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 कैटेगरी का होता है जो भी रिसोर्स का जो नोड है। एक होता है इम्प्योर, एक होता है नॉर्मल और एक होता है प्योर। प्योर का आउटपुट ज़्यादा होता है पर सेकंड आउटपुट, और इम्प्योर का आउटपुट सबसे कम होता है। ये नॉर्मल है तो मीडियम आउटपुट है। आप अगर प्योर होता, प्योर नोड होता तो आउटपुट मेरे ख्याल से 5-6 होता। जब 161 पूरा हो गया। अभी चलते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं इंगट्स। अभी सारे के जो जितना सबका इंगट बना ही लेते हैं क्योंकि प्लेट्स रॉड सबका ज़रूरत पड़ेगा। 20 और 10 तो अपग्रेड के लिए चाहिए और वर्कशॉप के लिए भी आई थिंक 6 चाहिए थे। 6 पता मुझे क्या, इसको ऐड कर लेना चाहिए। ये गया वर्कशॉप 6 और 4। तो यहाँ पे ये वैसे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपका गोल रहेगा वो कॉर्नर में आ जाएगा, लेकिन बाकी जो भी आपको करना है उसको अगर आपको मेन स्क्रीन पर लाना, क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत रहता है कि नंबर आपको 10-20 करके ये इतना चाहिए वो इतना चाहिए याद रखना पड़ता है। तो आप उसको आप याद रख सकते हो तो याद रखो, अगर याद नहीं रखना है तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे प्लस है आप इसको क्लिक करेंगे तो साइड में आ जाएगा इसका कि आपको कितना चाहिए आपका। तो इसके लिए मुझे चाहिए 6 और 4, 6 प्लेट्स और 4 रॉड। अभी क्राफ्टिंग करते हैं और टाइम लगेगा। आप इसको चाहें तो क्राफ्टिंग के लिए आप क्लिक होल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप सीधा स्पेस बार एक टाइम आप प्रेस करो और छोड़ो और वह खुद ब खुद एक ऑटोमेशन हो जाएगा। और अगर आपको स्टॉप करना है तो आप यहाँ से कट कर दो या फिर स्पेस बार फिर दबा दो। मैं क्या करता था कि माउस को यहाँ पे वो क्लिक करके रखता था जब तक हो नहीं रहा था, पता नहीं था मुझे कि हाँ ये भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे सीधा लिखा भी हुआ है। ओके, तो 100 और 63 ये हमने क्राफ्ट किया। प्लेट्स बनाते हैं 6 और 16 बनाइए और ये चाहिए 4, 24 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे इसको, Hub upgrade 2, power and shell, completed. The smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Fun fact: most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective: complete Hub Upgrade 3. Okay, Hub Upgrade 3 क्या है? ओके, कंस्ट्रक्टर, पावर पोल, कंक्रीट, स्क्रू, रेनफोर्स्ड आयरन प्लेट, स्कैनेबल रिसोर्स, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन यही है, एक यहाँ पे है लाइमस्टोन का नोड और एक इस तरफ है यहाँ पे। उसको चाहिए अगर कंक्रीट बनाने के लिए। ऐसे इसको यार ये बॉदर कर रहा है तो इसको बस सेलेक्ट करके हटा लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ये यूज़लेस स्पेस है। वैसे यूज़लेस उतना भी नहीं है। आपको कैरेक्टर अगर आपको कुछ चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डीप कैरेक्टर क्रिएशन इसमें कुछ है नहीं, बस सरफेस लेवल है। इनको चाहिए फ्यूल, यही पेड़ और पत्ते, इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा था उस समय कि भागना ही पड़ेगा। फिर स्टार्टिंग के लिए ये ज़रूरत है। आप इसको सेपरेटली भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। हाँ, और वर्कशॉप बिल्ड कर लेते हैं। मेरा पोर्टेबल माइनर कितने बना सकते हैं? 1। इसको अभी जितना ज़्यादा बना सकते उतना ज़्यादा बनाओ। अभी के लिए 1 है तो इसको ले जा करके देखो ये कैसे काम करता है, अभी बताते हैं आपको। कहाँ गया टैब? हाँ, इसको ले करके हैंड पे डाला और ये इसका एनिमेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका बिल्कुल एक टाइप का
रोबोट की तरह बिहेव करता है, लेकिन बस माइनिंग करता और कुछ नहीं करता ये। ऐसा लगता है कि चल के इधर उधर जाएगा लेकिन कहीं नहीं जाता। और ये ब्लिंक करेगा अभी आँख। माइनिंग शुरू। ग्रैब ऑल। अब इसको माइन करने देते तब तक क्राफ्ट करते हैं कुछ प्लेट्स और इस टाइप के 10 पीस 15 या 20 बनाएंगे इस टाइप का। 5 डालेंगे आयरन नोड पे, 5 डालेंगे लाइमस्टोन पे और 5 डालेंगे कॉपर पे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग गेम में इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये रिसोर्स को। अभी कुछ भी क्राफ्ट करना है तो इसके लिए ये लगता है। क्या किया मैंने? इंगट्स, प्लेट 70 के 33 आयरन रॉड, 15 16 18। फर्स्ट टाइम मैंने जब ये गेम बूट किया था तो इसी में बोर हो गया था, बहुत बोरिंग लगा था। मुझे लगा था कि ये गेम में कुछ नहीं है, ऐसे ही खेलते रहेंगे क्या बाद में तक। लेकिन फिर मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखा इस बारे में, तभी वो अर्ली एक्सेस में ही था। तो वो लोग कहते थे कि हाँ इंटरेस्टिंग है, शुरुआत स्लो है लेकिन बाद में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैंने फिर से इसको खेला और हाँ गेम इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत इंगेजिंग हो जाता है। पाइप डाला मैंने और ग्रेवल। और क्या करना है? माइलस्टोन अपग्रेड 3, प्लेट पाइप वायर। प्लेट्स है, पाइप नहीं है। पाइप बोला, आयरन रॉड कितना चाहिए? 20। चलो इंगट्स बनाते हैं। क्या हुआ? 22 के। आप इसको माउस से ऐसा ड्रैग करके अब यहाँ पे डाल सकते हैं, और या फिर अगर आप होल्ड शिफ्ट और क्लिक करोगे तो ये वो डायरेक्टली चला जाएगा जहाँ उसको जाना होता है, अपने प्लेस पे। अभी वायर 20 चाहिए, कॉपर है नहीं, तो कॉपर माइन करने चलते हैं। तो भाई यहाँ पे ऊपर है। ओके ये है कॉपर नॉड, यही है, चेंज नहीं किया उन्होंने। पहले इसको निपट लेते हैं। आओ गया। Fog remains 1. ओके अब इस पर डालते हैं पोर्टेबल माइनर। यहाँ से एक ही बार 500 लेके चलेंगे, 500 और कॉपर ओर्स, फिर नहीं तो फिर भागना पड़ेगा आगे पीछे। और बाकी ये रहा प्लैनेट।
प्लैनेट तो नहीं, जुपिटर जैसा लग रहा है, गैस जाइंट। ये है मून, या फिर हमारा प्लैनेट मून है, क्या पता। और वहाँ पे है एक गुफा, उसके अंदर जा सकते हैं लेकिन अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर है एक बहुत भयानक मकड़ी, बहुत डरावना मकड़ी है वो। वैसे मकड़ी नहीं है वो, एलियन क्रीचर है, लेकिन उसका जो डिज़ाइन है मकड़ी जैसा ही है। और वो बहुत ही, जो वो साउंड निकालता है और जैसा उसका मूवमेंट है, डरावना है बहुत। वैसे उसके अंदर अभी है भी कुछ नहीं, मे बी एक यूरेनियम माइन, पर उसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, कुछ तो कंप्लीट हुआ। ओके सो हाँ, इसकी पॉकेट कैपेसिटी 100 है। इसका अगर निकालेंगे तो फिर से ये माइन करना लग जाएगा। ये इसका एक लिमिटेशन है कि रुक जाता है, कैपेसिटी बहुत कम है, लेकिन पोर्टेबल है तो कितना रहेगा। सो हमारे पास है 500 के आसपास है, तो चलते हैं नीचे। बच गया। ओके, क्राफ्टिंग वायर पहले थोड़े और बना लेते हैं पोर्टेबल वायर। वहाँ पे ले जाके डाल देंगे लाइमस्टोन नोड पे, और फिर लाइमस्टोन नोड पे डाल के फिर आके बनाएंगे। हमें क्या चाहिए? ओके, यहाँ पे चाहिए कुछ 10 के आसपास बनाएंगे इसको। एक आयरन इंगेट्स, अभी तो प्लेट्स और रॉड कुछ भी नहीं है। ओके सो हमारे पास जितना भी आयरन ओर था उसको हमने आयरन इंगट में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम उसका प्लेट्स बनाएंगे और रॉड बनाएंगे। हाफ 40 रॉड बनाते हैं, बाकी जो भी बचेगा उसका प्लेट बनाएंगे। ओके 26 प्लेट, और इसका जो भी प्लेट आयरन बनाया हमने उसको बनाएंगे हम लोग पोर्टेबल माइनर बनाओ अभी। ओके सो हमारे पास 10 माइनर बन के रेडी हैं। ओके तो पहले हम क्या करेंगे कि वैसे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हब अपग्रेड 3। उसके लिए हमने प्लेट इकट्ठा कर लिया है, प्लेट पहले ही दे दिया है और रॉड भी दे दिया है। हमारे पास बच्चा है, हमें बस करना बाकी है वायर। तो वायर कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे अभी हमने जो पोर्टेबल माइनर्स बनाया है उसको हम ले जाके पहले इसको यहाँ, ये है लाइमस्टोन नोड है, इस पर डाल देंगे। जब तक वो माइनर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा लाइमस्टोन, तब तक हम वहाँ पे बनाएंगे अपना वायर, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है बनाने में। टैब ये हमने उसको हैंड पे किया, 1 2। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था, ये देखो ये जो पर्टिकुलर नोड है लाइमस्टोन नोड, ये इम्प्योर है, तो इसका जो भी एक्सट्रैक्शन होगा, जो भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे वो नॉर्मल से भी थोड़ा कम होगा, थोड़ा क्या या बहुत कम होगा। और प्योर का होता है उसका बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा ये लिंक को माइन करने, तो अभी हम लोग चलते हैं वायर बनाते हैं। पहले वायर के लिए चाहिए कॉपर इंगट बनाते हैं। 8 10 12 14 16 20। ओके 20 बन के रेडी है। अभी इसको यहाँ पे डालेंगे। हाँ तो देखो ये है, मैं बोल रहा था कि अगर आप इसको ये यूँ भी मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, और अगर आप चाहते हो कि आपको ये ड्रैग ना करना पड़े तो सीधा आप इस पर शिफ्ट होल्ड करो और क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा अपग्रेड। Hub Upgrade 3 Interior Furnishing completed. The constructor can produce simple parts, and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy.
We understand that Fixit pioneers are only human and thus prone to error. Next objective, complete Hub Upgrade 4. हब अपग्रेड 4। तो इसने बोला कि बस वही है कि जो कुछ और मशीन्स वॉल लॉक हुआ है, और एक और बात इसने भी मेंशन किया कि अगर आप चाहो तो ये चीज़ आप हब को आप इसको डिसमेंटल कर सकते हैं और इसको कहीं और बना सकते हैं, क्योंकि ये जो फिक्सिट या कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करता है। तो आपको जितना बनाने में लगा उतना ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको कहीं भी और भी बिल्ड कर सकते हैं। अपग्रेड उसका जाएगा नहीं, अपग्रेड रहेगा। जितना भी आपने अपग्रेड किया इसको, चाहे लेवल 4 लेवल 5 हो, वो सब रहेगा, वो अपग्रेड नहीं जाता है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कुछ नहीं है, ये तो बस आप इसको चेंज कर सकते हैं, बस कलर वगैरह बस, और कुछ नहीं। ये ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं यहाँ पे। ये रूम में कुछ भी नहीं है, मे बी फ्यूचर में वो कुछ ऐड करें DLC में अपने, लेकिन अभी के लिए तो इस रूम का कुछ यूज़ ही नहीं है। बस लुक्स है और कुछ नहीं। बाकी अभी एक ही जनरेटर है। अपग्रेड 6 पे देखते हैं। अपग्रेड 4 यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर। ओके, स्मेल्टर कंस्ट्रक्टर का अभी कुछ यूज़ नहीं है जब तक। अभी तो हमारे पास पोर्टेबल माइनर है, लेकिन एक और प्रॉपर माइन करता है, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अभी इसको अनलॉक करते हैं 4 पे। अभी ये कुछ भी अनलॉक हो रहा है, इसका कभी कुछ यूज़ नहीं है। इन सब का यूज़ है, इनका कंस्ट्रक्टर, पावर पोल, अभी इनका कुछ यूज़ नहीं है जब तक आपके पास एक प्रॉपर माइनर नहीं आ जाएगा, माइनिंग मशीन, तब तक इनका कुछ यूज़ नहीं है। इसका भी कुछ अभी यूज़ नहीं है। तो इसका करते हैं सेलेक्ट। हमें चाहिए कंक्रीट, केबल और आयरन प्लेट्स। आयरन प्लेट्स हमारे पास हैं, बाकी जो बचा है उसे बनाते हैं। क्या हुआ इसका? ओके, आयरन इंगट्स, आयरन नहीं है, आयरन और नहीं है। आयरन इंगट बनाते हैं। 70 बना सकते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो आयरन प्लेट्स हमारे पास 72 बन के रेडी हैं। अपग्रेड 4 के लिए चाहिए अभी 38 है, 75 चाहिए। हमारे पास काफ़ी है, लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं है रियली बात करें तो। अपग्रेड 5 में भी आएगा इसका यूज़ तो, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इसको बाकी बचा हमारे पास केबल, तो केबल बनाते हैं। केबल के लिए पहले कॉपर इंगट बनाना होगा। कॉपर इंगट से वायर बनेगा, वायर से फिर केबल बनेगा, केबल 20। ओके, 31 हमारे पास इंगट है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वायर में। और 42 वायर 20 केबल के लिए काफ़ी है, तो केबल बनाते हैं। ओके, सो 20 केबल भी रेडी है, इसको भी यहाँ पे। बाकी बचा कंक्रीट 10। कंक्रीट के लिए लाइमस्टोन चाहिए। लाइमस्टोन के लिए हमने पहले यहाँ पे पोर्टेबल माइनर डाला हुआ है, यहाँ से निकालते हैं पहले लाइमस्टोन। यहाँ पे हम बनाएंगे कंक्रीट। नॉट इनफ स्पेस इन इन्वेंटरी। ओके, इन्वेंटरी फुल है, तो जो भी जिसकी भी ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ पे रख देते हैं। अरे मैं सोच रहा था कि ये बन क्यों नहीं रहा। ओके, स्पेस है, अब बनेगा। हमें चाहिए 10 कंक्रीट, 10 रेडी। 10 को यहाँ पे डाला। अपग्रेड for complete. Hub Upgrade 4, landing platform and utilities completed. Conveyor Landing belts connect the platform. output of one building to the input of another and transport resources. Due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyor belts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective,
Complete hub upgrade 5. ओके अपग्रेड 5। ओके सो ये है माइनर मार्क 1 गेम का सबसे इम्पोर्टेंट मशीन। इसको समझो तो ये एक पोर्टेबल माइनर होता है, ये एक बेसिक माइनर है, नॉर्मल माइनर है। इसको हम वहाँ पे डालेंगे और वो अच्छा उसको करके दिखाएंगे, बोल के दिखाने का क्या काम है। हमें चाहिए 75 रॉड, 50 केबल और 20 कंक्रीट। हाँ कंक्रीट ही, कंक्रीट बनाते हैं पहले, वो फास्ट बन जाता है। कंक्रीट इनफ है हमारे पास 26। अभी बनाते हैं वायर और केबल। अच्छा पहले वायर बनाएंगे उसके बाद ही केबल बनाएंगे। 50 केबल चाहिए, 38 40 50। ओके और बनाना होगा। ओके 84 काफ़ी होना चाहिए। ओके सो हम लोग 102 वायर से हम लोग 51 केबल बना सकते हैं। तो सीधा पहले वही बनाते हैं, लेकिन ये बहुत 51 सफिशेंट। केबल हमने डाला, कंक्रीट हमारे पास बस 75 रॉड ये बाकी है। आयरन इंगट भी हमारे पास सफिशेंट है। 73 74 75। ओके अब रॉड बनाते हैं। 75 76 हमारे पास है सफिशेंट रॉड। अभी ट्रांसफ़र करेंगे इसको और अपग्रेड 5 कंप्लीट। Hub upgrade 5, power expansion completed. The miner, unlike portable miners, can be connected to conveyor belts and requires power to function. Caution: as you expand, the energy demand of your production may exceed the capacity of your power grid. The onboarding program was established because Fixit pioneers often experience memory issues after planetfall. If you are experiencing nosebleeds, nausea, existentialism, or an itchy scalp, there is no need for concern. This should pass within 5 to 7 workdays. Next objective: complete hub upgrade 6. ओके कंप्लीट हब अपग्रेड 6 के स्पेस एलिवेटर, बायोमास बर्नर और 3 इन्वेंट्री स्लॉट। ओके सो ये स्पेस एलिवेटर गेम प्रोग्रेशन के लिए होता है। इसी को यूज़ करके मतलब इसका कुछ डिमांड रहेगा कि आप फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में आपको कुछ चीज़ें क्राफ्ट करना रहेगा और उसको आपको देना है स्पेस एलिवेटर में। स्पेस एलिवेटर इसको स्पेस में भेजेगा और जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे उसको तब तक आप फेज़ में ऊपर नहीं जाएंगे। तो फ़ेज़ 1 बायोमास और बायोमास बर्नर ये वही है जो हमारे हब के पीछे है, बस ये सेपरेट है। इसको आप कहीं और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके इसको सेलेक्ट करते हैं। 100 वायर और 50 कंक्रीट। पहले कंक्रीट बनाते हैं, फास्टली बन जाता है कंक्रीट। फिर 30 बनाने तक के लिए हमारे पास है, एक ही बार लेके आते तब बनाते हैं। कि पहले कंक्रीट ही बनाएंगे। ओके सो 50 कंक्रीट हमारे पास है, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। हमें चाहिए 100 प्लेट और आई थिंक पहले वायर बनाते हैं। वायर इन दोनों में बहुत टाइम लगेगा। वायर के लिए भी हमारे पास 32 वायर ही बना सकते हैं। हमें चाहिए 100, तो पहले कॉपर इंगट बनाते हैं, उसके बाद वायर बनाएंगे। ओके तो 100 वायर बनाने के लिए हमने सफिशिएंट इंगट क्राफ्ट कर लिया, तो वायर बनाते हैं अब। ओके 100 वायर बना लिया हमने, 102 बनाया है। अभी हमें चाहिए 100 रॉड और 100 प्लेट्स। तो उसके लिए चाहिए हमें आयरन इंगट्स के लिए हमारे पास पहले आयरन ओर है, तो आयरन इंगट बनाते हैं। ओके हमारे पास अभी जितना आयरन इंगट है उसके हम 165 रॉड बना सकते हैं और 110 प्लेट। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा ओवर प्रोड्यूस करेंगे आयरन इंगट्स को, कि हम एक ही साथ आयरन प्लेट्स भी बना लें और रॉड भी बना लें। ओके सो हमने आयरन इंगट को ओवर प्रोड्यूस किया, बल्कि हमारे पास जितना आयरन ओर था सबका हमने बना लिया। तो इसके जो हमारे पास अभी जितने आयरन इंगट है उसके हम बना सकते हैं 318 रॉड और 212 प्लेट। अभी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बना सकते हैं। तो 100 रॉड क्राफ्ट करते हैं।
क्राफ्ट कर लिया हमने। हमारे पास अभी 132 बनाने के लिए इंगट है, और जो कि 100 से काफ़ी है, तो बनाते हैं हम लोग। ओके, सो प्लेट और रॉड दोनों हमारे पास सफिशिएंट है। तो अभी इसको ले जाके यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। 100 प्लेट, 100 और वायर भी 100। अब अपग्रेड 6 कंप्लीट होना चाहिए। होपफुली ये फाइनल है। Hub upgrade 6. Landing platform yeah. hydraulics completed. Freighter landing initialized. Congratulations, you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a Fixit pioneer. Fixit looks forward to your future achievements, because a future with Fixit is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and biomass burners can now be built individually. Your first official objective is to initiate project assembly by building the space elevator. This objective will take a significant amount of resources, so Fixit recommends getting to work. ओके, आई थिंक ये फाइनल अपग्रेड था। ओके हाँ, फाइनल अपग्रेड है। टीयर 0 हमने कंप्लीट कर लिया, टीयर 1 और 2। तो ये बेसिकली था हमारा ट्यूटोरियल। गेम शुरू होता है यहाँ से, टीयर 1 से। बेस बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और फील्ड रिसर्च के। तो ये लाइक हमारा आगे का जो भी हमें करना है इसके थ्रू करना होगा। आगे का जो भी अपग्रेड हम यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, और ये इसमें जाएगा, और ये फिर जाता है स्पेस में। स्पेस में कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। ये एनिमेशन नया है, यहाँ पे आता है ऊपर से और यहाँ पे अटैच होता है। ये एनिमेशन नया है, मतलब पहले नहीं था। पहले अर्ली एक्सेस में ये एनिमेशन नहीं था। बाकी पूरा एनिमेशन था। ये ऊपर से आता है और यहाँ पे आके रुक जाता है, और उसके बाद घूमता है। उसके बाद फिर यहाँ पे अटैच करता है, लैंड करता है। ओके, तो हमारे को अभी क्या कहा, यहाँ पे ये देख लेते हैं ये क्या है। हाँ, सेकंड जनरेटर। इसको चाहिए बायोमास फ्यूल। बायोमास फ्यूल मतलब ये जो ये झाड़ियाँ हैं और वहाँ पे जो पेड़ है, इसको पेड़ को अभी आप काट नहीं सकते। इसके लिए चाहिए चेन से अनलॉक करना होगा। वो आई थिंक टीयर 2 में अनलॉक होता है। ये भी चीज़ ज़रूरी है, बैरल नट। Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for Fixit to make an informed decision. Store this potential resource for later use. हाँ, इसको आप चाहो तो अभी खा भी सकते हो, और नहीं तो आप स्टोर करो। और एक और वर्क स्टेशन टाइप का ही MAM करके वो अनलॉक होता है। कुछ टाइम बाद अनलॉक होएगा, वहाँ पे आप उसको कंस्ट्रक्ट करो और वहाँ पे इसका सैंपल आप देंगे तो और भी ज़्यादा अपग्रेडेबल, या फिर और भी जैसा जो हैंड टूल है उसी टाइप के अनलॉक होते हैं। वो हेल्थ के लिए इनहेलर जैसा दिखता है। आप उसको, अगर आपके फील्ड में आपका हेल्थ लो है, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है जानवर, लेकिन बाकी के वर्ल्ड में जब एक्सप्लोरेशन अब करने चाहेंगे तो जैसे हम अभी लड़े उससे भी ज़्यादा खतरनाक जानवर रहते हैं। तो उनसे आप लड़ोगे, आप डैमेज आपको देंगे, और वो डैमेज को हील करने के लिए आपको वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा फास्ट अटैक करते हैं। एक तो यहाँ पे ऐसा भी जानवर है जिसके पास आप जाएंगे तो आपको वो रेडिएशन डैमेज करेगा, तो उसको आप पास जाके, जैसे हमने यहाँ पे वो जानवर था उसको मारा था, उसको आप मार नहीं सकते। उसके लिए आपको चाहिए होगा रीबार गन या फिर मशीन गन। अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो अनलॉक होगा। वो यहाँ पे हब पे अनलॉक नहीं होता, वो होता है अनलॉक MAM से। प्रोडक्शन पावर के स्मेल्टर, लॉजिस्टिक, कन्वेयर बेल्ट के वो अभी अनलॉक नहीं हुआ है, वो अनलॉक होएगा कहाँ पे? बेस बिल्डिंग, लॉजिस्टिक, हाँ ये है, ये MAM फील्ड रिसर्च पे अनलॉक होएगा। और ये रहा चेन सॉ, ये टीयर 2 पे। तो हम करेंगे अभी
पहले हम ये मैप और MAM इसको अनलॉक करेंगे, उसके बाद हम अनलॉक करेंगे ये चेनसॉ सॉलिड बायोफ्यूल, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें बायोमास बर्नर में। कि आप इसमें पत्ती और पेड़ भी डाल सकते हैं बायोमास बर्नर में। हमारे पास अभी बायोमास जनरेटर को फ्यूल करने के लिए 3 ऑप्शन है। एक होता है आप या तो उसमें पत्तियाँ डालें, एक होता है कि आप लकड़ी डालें। लकड़ी आप चेन सॉ से काटेंगे, उसको हाथ से आप इकट्ठा नहीं कर सकते। इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन वो क्वांटिटी रहता है वो कम रहता है। आप अगर चेन सॉ से काटेंगे सीधा, ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है। और ये अगर पत्तियाँ भी इकट्ठा करते हैं उसी वक्त आपको लकड़ी है वो भी कलेक्ट होता है, लेकिन होगा ना होगा वो रैंडमली होता। 3 आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पत्ती डालें बायोमास जनरेटर में, या तो आप लकड़ी डालें, या तो आप ये सॉलिड बायोफ्यूल यूज़ करें। पेट्रोलियम वो आप अनलॉक ना कर लेते तब तक आपके पास यही रहेगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, तो और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको पहले पत्ती लकड़ी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बायोमास में, और उसके बाद सॉलिड बायोफ्यूल। अब दिखाता हूँ मैं आपको, आप इसको, हाँ देखो, लीव मतलब पत्ती और ये लकड़ी, इसका बना सकते हैं बायोमास, और बायोमास से बना सकते हैं आप सॉलिड बायोफ्यूल। बायोफ्यूल को आप इस पे भी बना सकते हैं, और या तो आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जैसे कि है प्रोडक्शन, यहाँ पे है प्रोडक्शन इन कंस्ट्रक्टर और क्राफ्टिंग बेंच। तो ये 2 प्रोसेस बनेगा। पहले आपका पत्ती जाएगा कंस्ट्रक्टर में, फिर उसका बनेगा बायोमास फिर जाएगा एक सेकंड कंस्ट्रक्टर में, और वहाँ से बनेगा बायोफ्यूल। तो ये एक अभी के लिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन लाइन रहने वाला है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है जब तक कोल प्लांट या फिर नहीं जाता। तो वो रहेगा। और क्या है, हाँ, और है हमारे पास, हाँ, ये फाउंडेशन, ये भी अनलॉक करना ज़रूरी है। स्प्लिटर और ये फील्ड रिसर्च, लॉजिस्टिक और बेस बिल्डिंग। पहले हम लोग ये करेंगे फील्ड रिसर्च, उसके बाद हम अनलॉक करेंगे Tier 2 पे चेनसॉ बायोफ्यूल, उसके बाद ये सब बाकी सब अनलॉक करेंगे। अभी के लिए यही रहेगा। तो हमने ये Tier 0 अपग्रेड हमने कंप्लीट कर लिया। ये Tier 0 ट्यूटोरियल ही था और कुछ नहीं था, और वो रहा हमारे पास। ओके, सो तो हमारे पास कुछ 1.5 घंटे के आसपास का फुटेज होना चाहिए। उसको काट छाट के मे बी आधा घंटा या 45 मिनट, और पता नहीं 10 मिनट भी हो सकता है। वो करते हैं। पहले इसका ये पार्ट रहेगा, और फेज़ वन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। साइनिंग ऑफ।